A plus 3D and so on. This is the sequence, AP sequence, where A is called first term and D is called common difference. That is you can make T2 minus T1 or T3 minus T2 and so on up to Tn minus Tn minus 1. Okay. 71. This is the common difference. What is the nth term? A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. This is your second term, 1 into D. Third term, 2 into D. Fourth term, 3 into D. 7th term, A plus n minus 1 D. What is the Sn? n by 2 into 2a plus n minus 2a plus n minus 1d. Okay. Or you can call n by N 2 by 2 A into plus L. L. plus A plus L. L. where L is the last term. Tn. मतलब Tn. ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं. Then properties. सर आप फॉर्मूलाज लिख रहे हो? हाँ ये फॉर्मूलाज लिख रहे हो? हाँ. Properties. If A1, A2, A3 and so on are in AP with common difference D, then if you added one fixed value to each and every term, तो new sequence क्या होगा? A1 plus K, हाँ सब ऐड होते जाएंगे सेम वैल्यूज. A3 plus K. ये सीक्वेंस आपको क्या देगा? नया एपी देगा. AP देगा. नया एपी देगा. और इन AP कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. डी होगा. हाँ अभी भी D होगा. A1 into K, A2 into K, A3 into K and so on, whether they are in AP or not. No. No, not in AP. नहीं होगा. सर ये भी होगा सर. एक बार इन दोनों का डिफरेंस चेक करो. What is T2 minus T1? K into D. What is A2 minus A1? D into K. हाँ होगा. What is T3 minus T2? अरे ओके. ये होगा ना? हाँ सर ठीक है. K. तो they are in AP and common difference क्या होगा? यही आपका K into अभी D के होगा. Suppose फिक्स पावर करेंगे. A1 to the power K, A2 to the power K, A3 to the power K and so on. Whether they are in AP? No, sir. हाँ अभी तो नहीं होएगा ना. नहीं सर एपी में नहीं होगा. They are not in AP. क्या बोल रहे हो शिखर? क्या बोल रहे हो? In one the common difference should be K. Why it is D? क्यों common difference 1 क्यों होगा? नहीं मैंने K होगा. आपने D जस्ट वेरिएबल के जैसे लिखा है. क्यों? ये दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है. सर K1. यस. आज 80 लोग कैसे? हाँ ऑरेंज के भी बच्चे. ऑरेंज के भी है. ओ हाँ ये दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना दे रहा है. A2 minus A1. वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस D. हाँ डी. तो डी तो आया ना. के क्यों आएगा? के तो कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों का डिफरेंस. यस सर. ठीक है. यस.
if ABC are in AP, then आपका क्या होगा, B माइनस ए जितना होगा C माइनस बी उतना होगा. That implies B is equal to A plus C by 2. Here B is called, and B is called arithmetic mean, AM. Okay, AM मतलब between A and C. Okay, and इसका aim होता है B is called arithmetic mean which is A plus C by 2, क्योंकि आपको इधर मिला 2B equal to A plus C. If A B C D E, sorry, A B C D are in AP, then BC are called two arithmetic means. Okay. If A B C D are in AP, then B and C are called two arithmetic means in between A and D, and their sum, that is B plus C, is equal to 2 times of A plus D by 2. Okay, इसको मैं एक फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ. इंस्टेड ऑफ A plus D मैंने लिखा 2 into A plus D by 2, that is 2 times mean between, or arithmetic mean between, arithmetic mean of A and D, first and last. आप खुद चेक कर सकते हो. आपका A B C D are in AP, let us take common difference X, तो B को क्या लिखोगे? A plus X. C को क्या लिखोगे? A plus 2X. D को क्या लिखोगे? A plus 3X. A plus 3x. What is your B plus C? 2a plus 3x. 2A plus 3X. What is your A plus D? 2A plus 3X. 2a plus 3x. तो सेम मिला ना, तो A plus D मिला, मैंने 2 into A plus D by 2 लिखा. Similarly, if A B C D E are in AP, हाँ सर. then B C D are called three arithmetic means in between A and E, and their sum, that is B plus C plus D, is equal to 3 times of A plus E by 2. तो जितने मीन्स आता है ना, इधर वही मल्टीप्लाई हो जाता है. एंड सी भी उनका मीन होगा, टोटल का मीन होगा सी. इफ यू चेक सी द टोटल, ये पांचों का मीन होगा. वो भी ये कर सकते हैं, देखते हैं. एक्चुअली बीसीडी भी एपी ना, तो बी प्लस डी कितना होता है? ABCD are in AP मतलब BCD also are in AP. Yes sir. Well, B plus D is equal to A plus C. B plus D कितना होता है? A plus A C. plus plus E. 2C. 2C. 2C हाँ, plus 2C. C. 3C हो जाएगा. तो 3 कैंसिल होगा तो C कितना हो जाएगा? A plus E by A 2. plus E by 2. तो इनका मीन भी आ गया. ठीक है? 3C कब एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, 3 कैंसिल हो गया तो C का वैल्यू क्या मिला? A plus C. हाँ. तो मतलब टोटल का भी मीन आ जाएगा. आप ये भी चेक कर सकते हो. कभी 5 टर्म रहता है तो आप एपी को कैसे लिखते हो? A plus. सर वो जनरल फॉर्मेट में लिखा. A plus A plus 2D minus 2D. A plus A minus A minus 2D. ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ सर. ये भी एपी होगा. इनका मीन चेक करो कितना आ रहा है.
ए A. सर। ये आएगा। यही मीन होता है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो 5 पे ओपन है, तो मिडिल वन उनका मेन होता है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। लेट A1, A2, A3, AN, B are in AP. So except first and last, remaining are called n arithmetic means in between A and B, and their sum. इन ए प्लस n times a plus b by 2. मतलब A1 plus A2 up to plus AN n क्या होगा? n n times times, a plus टाइम्स b ए by प्लस बी 2. बाई टू। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। Yes, इसमें sir. एक बात नोट रखो, ये जो मैंने केसेस रखा, whether it is केस 6, 7 और 5, 4, 5, 6, 7 जो भी रखा, मैंने ये सीक्वेंस को एपी में रखा। ठीक है, इफ A1, A2, A3 up to AN belongs to real number, not necessary they are in AP, then their mean और अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए एन इंटू ए प्लस एन बाई टू। A1 plus A2 plus A3 up to plus AN होल सर डिवाइडेड On में N. कोई भी 100 नंबर्स आप रखे, सो देयर सम अपॉन 100 हो जाएगा। सर सेवेंथ वाले में हम्म। एन का वैल्यू क्या रहता है? एन का वैल्यू क्या रहेगा इसमें? एन का वैल्यू ये जो एन, ये वही एन होना चाहिए। आपके तो उसका जितने वैल्यू क्या सारे रहेगा? हैं, जितने उसका नंबर वैल्यू कितना? जितने आपका अरिथमेटिक मीन्स रहेगा ना, उतने ही मल्टीप्लाई होगा। ओके। वो एन ए प्लस बी का इंक्लूड करता है? नहीं नहीं नहीं, ये इसको ए बी को इंक्लूड करोगे तो आपको ए प्लस बी आ जाए, सॉरी एन प्लस 2 टर्म्स आएगा, अच्छा ठीक है सर। बीच में एन टर्म्स यस। मैंने रखा ना, यहाँ से स्टार्ट किया 1, 2, हाँ। 3 अप टू एन, तो एन नंबर्स मिला। यस। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? बट ये जो नीचे मैंने रखा, इसमें नॉट नेसेसरी यू नंबर्स आर इन एपी, बट ये जो केसेस रखा मैंने, ये एपी में जरूरी होना चाहिए। एपी में रहेगा तो देन दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। सपोज मैंने 2, 7, 12, 17, 22 ऐसे रखा, तो these three are called three arithmetic means in between 2 and 22 because these 5 elements are in AP. ठीक है, but if I randomly select 2, 3, 8, 15, 89, then these are not three arithmetic means, ये नहीं होगा, क्योंकि these 5 elements not are in AP, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पूरा टोटल का मीन निकालते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि ये दिस 3 आर द मीन बिटवीन 2 and 89, ऐसा नहीं होता है। बट एक केस में होगा, इफ दे आर इन एपी देन एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट रिमेनिंग आर कॉल्ड मीन्स इन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, बट एक केस में ऐसा नहीं होगा। ये पार्ट समझ में आया? यस सर। क्या बोल रहे थे? सर ये 1 पे जा सकते हैं, फर्स्ट केस पे। ये आप अभी नोट मत करो, हम थोड़ा जल्दी ये करेंगे, कवर अप करेंगे इसको। यस। इसको मैं डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? ओके। अब बाद में नोट कर लेना, पीडीएफ को सेव मत करना। हाँ। नोट कर लेना।
अपने हिसाब से नोट कर लेना। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो। Yes. नेक्स्ट, तो ये हो गया अरिथमेटिक में का प्रॉपर्टीज। और कुछ प्रॉपर्टीज था? नहीं, नहीं बस नहीं हो गया। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस किए थे, आप उसको चेक कर सकते हो। मतलब ये आप सर तीनों व्हाट लेक्चर ए की इक्वल टू रिकॉर्डिंग 2 भेज बी। देंगे ग्रुप पे। हाँ, आप तीनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज देंगे। तीनों का अभी मेरे पास होगा कि नहीं होगा डिफिकल्ट है। तो सर साइट में साइट में मिलेगा आपको, मतलब वो उनके ये में मिल जाएगा, हाँ सर, सेक्शन में मिल आपका जाएगा। प्रीवियस डाउट लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं मिला सर यूट्यूब पे। प्रीवियस डाउट लेक्चर वो मिल जाएगा। सर मतलब रिकॉर्डिंग की पीडीएफ? सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कल का जो रिकॉर्डिंग, हाँ सर। हाँ ठीक है, डाल दूंगा आज। वो है। हाँ सर। देन इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप एक बार देख जाओ, मतलब ये करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। जहाँ पे नहीं होगा मैं बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक। और एक हम डिस्कस किए थे जीपी, व्हिच इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस कैसे में रहता है? इट इज ए आर स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। यस सर, And here A is called first term T1 and R is called कॉमन रेशियो। common ratio, which is ratio of any term with its previous term. कोई भी टर्म उठाओ अपन its previous term, मतलब T2 upon T1, T3 upon T2 and so on. Then how to write your TN? TN को कैसे लिखोगे? A into R raised to n minus 1। A into R raised to n minus 1, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए आपको R पावर 1 मिला, थर्ड टर्म के लिए R स्क्वायर मिला, फोर्थ टर्म के लिए R क्यूब मिला, लाइक दैट। तो TN होगा A into R raised to n minus 1। ओके, व्हाट इज SN? सर इसके SN में दो केसेस है ना? दो केसेस? हाँ क्या सर। क्या? हाँ, सेम ही लेस चीज है देन वो वन, तो। ग्रेटर देन वन। हाँ क्या मिला था SN? ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। a into 1 minus r raised to n 1 1 minus minus r R raised to n by R divided by r raised to minus R r minus 1। हाँ, कब? जब r लेस देन 1 है। R लेस देन 1 के लिए। तो दोनों सेम ही होगा। अच्छा, R मोर देन 1 के लिए क्या होगा? Rn-1 अपॉन R minus 1। सर माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं सर। ये दोनों से माइनस माइनस कॉमन ले लो, ये ही आ जाएगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो SN कोई भी एक फॉर्मूला लिखो, A इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर लिखो, नहीं तो ये लिखो, कोई एक लिखो। नो नीड टू कीप एनी कंडीशन, whether r लेस देन 1 और r मोर देन 1, बट ये कंडीशन में लिख सकता हूँ r इज नॉट इक्वल टू 1। इफ r इक्वल टू 1 R is equal to 1 then 1 होगा sum तो is ये equal to अनडिफाइंड n होगा। हाँ सर अनडिफाइंड। r इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 होगा, समथिंग बाय 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, infinity हो जाएगा। ठीक है। बट इफ r इक्वल टू 1 आप इसमें डाल सकते हो, ये सीक्वेंस में आप डाल सकते हो। r की जगह 1 डाल दो, आपका सीक्वेंस क्या बन गया? सेम n टाइम्स a n हो जाएगा। हाँ, ऐसे n टाइम्स, तो उनका सम कितना होगा? n a n n है, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ SN। ठीक है,
एक्चुअली आपको 10th में क्या करते हो, नंबर में आप करते हो ना, इसलिए वो नंबर आपको नेगेटिव ना, मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा जब r मोर देन 1 हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव दिखेगा, बट फाइनल आंसर यही आएगा, ऐसा कोई ये नहीं होता है। तो वो नेगेटिव नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, बट नथिंग डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, चाहो तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। Sn का मतलब क्या होता है, n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम। ओके, a plus ar plus ar square plus ar cube and so on up to ar raised to n minus 2 plus ar raised to n minus 1। सेम Sn में क्या करो, एक r मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई r विथ योर Sn, देन राइट डाउन। तो a क्या होगा, RA AR मैं थोड़ा एक टर्म शिफ्ट करा के लिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ar क्या हो जाएगा, AR square ar स्क्वायर क्या होगा, AR क्यूब बढ़ता जाएगा वन तक जाएगा ये क्या हो जाएगा, AN minus 1 AR n AR minus n 1 ठीक है। Yes. अब ये दोनों का हाँ, सर। डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 1 माइनस r इंटू Sn, तो ये सब कैंसिल होगा, है ना, तो ये होगा, ये सब माइनस में हो गया था इसलिए कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा a, इधर a बचा और ये बचा माइनस a r रेज टू n माइनस 1, नहीं r रेज टू n, बराबर। तो which you can write a into 1 minus r raised to n, this is the 1 minus r into Sn का वैल्यू। तो Sn क्या हो जाएगा, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus, ओके, बट इधर कंडीशन रहेगा r is not equal to 1। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn, राइट। Yes. हाँ सर। सर और एक होता है S इंफिनिटी, वो क्या होता है, Sir, when r lies between 0 to 1, 1 minus r raised to n, sir, वो इसका negligible मतलब होता है, वन माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपका इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है तो Sn S इंफिनिटी बन जाता है। ठीक है, Yes. तो इस दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पे थोड़ा आपका जो r लेस देन 1 की मोर देन 1 उसका थोड़ा फैक्टर रहता है इधर, बट फॉर द काउंटेबल ऑफ टर्म्स के लिए कोई मायने नहीं रहता है। उसमें मैं n टेंड्स इंफिनिटी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे r को हम दो पार्ट बनाएंगे, एक्चुअली r इज नॉट इक्वल टू 1 था, फ्रॉम बिगिनिंग ओनली यहाँ पे आपका कंडीशन रहेगा r इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r जब 0 होता है आपका सीक्वेंस बनता ही नहीं। आपका सीक्वेंस क्या है, a ar स्क्वायर ar क्यूब, r को 0 रखोगे तो आपका यहाँ से खत्म ना, कोई टर्म बचा ही नहीं। Yes. तो यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग ओनली r इज नॉट इक्वल टू 0, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, जीपी के लिए r इज नॉट इक्वल टू 0। अब -1 इसको दो पार्ट बना रहा है, एक बना रहा है कि -1 से लेके +1, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, Including 1 minus 1. नो 1 नहीं है ना। हाँ, अच्छा हाँ। Okay. और एक होता है इसके आगे के लिए हम रखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, numerator less than denominator। यस,
इफ इट इज m by n तो m strictly less than n होता है, और लाइक दैट 2 by 3 लेट अस से। इसका मैं पावर को जितना बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू क्या होगा? कम होता जाए, बढ़ता है। इसका पावर में बढ़ाते छोटा हो जाऊंगा, जाएगा, वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। कम हो जाएगा। तो पावर जब टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, सर वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा? सर एक टाइम के बाद जीरो के टेंड्स पास टू 10 to 0 हो जाएगा जीरो, सर। ठीक है। बट इफ इट इज 3 by 2 पावर n, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इंक्रीज होता जाएगा, इसका पावर को मैं बढ़ाते जाऊंगा, सर ये इनफिनिटी बढ़ते जाएगा टेंड्स टू सर। इनफिनिटी ये हो जाएगा। टेंड्स टू इंफिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें वो फैक्टर काम करता है। इसको हम दो पार्ट बनाएंगे, एक लिखेंगे, ए पार्ट को लिखेंगे mod r less than 1। इफ mod r less than 1 देन r लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, यस और ए पार्ट को लिखेंगे mod r मोर देन 1, ठीक है ना। इसका मॉडुलस देखो मोर देन 1 होगा, whether you have to take this side or that side। तो इसको दो पार्ट में हम रखेंगे। when mod r more than 1 ये टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। सर अगर आपका- आपने मॉडर लिया तो फिर आपने -1 to 1 क्यों लिया सेट? नहीं mod r लेस देन 1, -1 से लेके +1, यूज क्या होगा वैसे दो केसेस लेने का? इसको बोलते प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ इसको सर बोलेंगे प्रॉपर हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाता है प्रॉपर। हाँ सर, हाँ सर। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ये 0 की तरफ जा रहा है। ये जब 0 हो जाएगा तो आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? a/1 - r। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ये टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जाएगा, हाँ सर। ठीक है। तो टोटल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देयर आर टू फॉर्मूला ऑफ s इंफिनिटी, दैट इज a/1 - r if mod r less than 1। हाँ mod r less than 1 मतलब r lies in between -1 से लेके +1, बट कंडीशन r is not equal to 0। वो तो इनिशियल कंडीशन, ठीक है। बट -1 से लेके +1 के अंदर 0 है, बट 0 हम ले नहीं पाएंगे। हाँ सर। And this became undefined if mod r more than equal to r। If it is equal 1 also na also undefined होगा ना, क्योंकि n tends to infinity, तो ये टोटल भी undefined हो जाएगा, ठीक है। तो mod r when mod r more than equal to 1, that means आपका r का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, नहीं तो -1 से कम होगा, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड mod r more than equal to 1। दैट केस योर s infinity became undefined। सर ये अनडिफाइंड वाला भी भाई एग्जांपल ले सकते हैं, कोई न्यूमेरिक एग्जांपल? हाँ सर, एक दे दो प्लीज। जैसे कि मैंने 1 + 2 + 4 + 8 ये जीपी, यस इसका sn सपोज 100 टर्म्स आपको निकाल बोला गया कि फाइंड आउट s 100, हाँ आप निकाल सकते हो। हियर a = 1, कॉमन रेशियो = 2, आप s 100 निकाल सकते हो। s 100 क्या होगा? a × 1 - 2 to the power 100 upon 1 - 2। तो इसमें a की जगह 1 है, हाँ तो you will get 2 to the power 100 - 1 upon 2 - 1 हो गया ना। 2 - 1 is the 1, तो 2 to the power 100 - 1 is the answer। But if you find out s infinity, sorry, if your question is the s infinity, तो क्या होगा? ये वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा ना, यस सर। हाँ टेंड्स टू तो इनफिनिटी। टेस्ट ये क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू बिकेम अनडिफाइंड। इसको आप डिफाइन कर नहीं पाओगे। हाँ बट वही क्वेश्चन आपको 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे दिया गया। व्हाट इज योर a हियर? 1 1/2। व्हाट इज द r? 1/2 1/2। 1/2। ये केस में s 100 निकालो।
हाँ एस सर 100 होगा डिक्रीज होगा कंटिन्यू 1 upon 1 minus 1 by 2 to the power 100 upon 1 minus 1 by 2. 1 minus r raised to 100 upon 1 minus r. ठीक है ना? हाँ सर Which equal to आप चाहो तो 2 to the 2.5 power 100 minus 1 upon 2 raised to 100 by 1 by 2. That means 2 raised to 100 minus 1 upon 2 raised to 199. आप लिख सकते हैं. हाँ सर If you find out s infinity, तो एक केस में क्या होगा, ये जो आपका ग्रेजुअली वैल्यू ऐसा 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 छोटा हो रहा है 1/8 देन 1/16 1/32, ये सब नेग्लिजिबल होता जाएगा टुवर्ड्स इंफिनिटी. ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, a upon 1 minus r, that is 1 upon 1 minus 2, that is a वैल्यू. इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट. हाँ सर ओके, whereas this is called divergent. एक केस में आपका टुवर्ड्स इंफिनिटी क्या होता है, डाइवर्जेंट. ये सर ये ग्राफ से भी रिलेट कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल ग्राफ से रिलेट होता है. इसका जो ये जो ग्राफ रहेगा, दो तरीके से ग्राफ होता है. ये ग्राफ जो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता या तो बढ़ता रहेगा ऐसे चलता रहता है. हाँ इंफिनिटी तक. ठीक है, आपका जितना पावर बढ़ाते जाएंगे ना, ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा. सर ये तो उसके लिए ना 1 से रिलेटेड. हाँ, ये जब रहता है कॉमन रेशियो लेस देन 1. हाँ सर जब कॉमन रेशियो मोर देन 1 रहता है ना, आप जितना बढ़ाते जाओगे ना, वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा. बढ़ जाता है. ऐसे होता है. मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका पढ़ा होगा तो थोड़ा ये होता है. सर एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है? वाई एक्सिस अपने ग्राफ बनाया ना उसका. नहीं एक्चुअली इसका एग्जैक्टली ग्राफ नहीं मिलता है, क्योंकि दिस इज नॉट फंक्शन. ओके हाँ अच्छा. तो इसका ग्राफ नहीं मिलता है. हाँ समझा. तो सिर्फ फंक्शन का आप ग्राफ निकाल सकते हो ना. ये इट इज नॉट फंक्शन, तो ग्राफ नहीं. मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये व्हेन कॉमन रेशियो मोर देन 1, आपका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता तब बढ़ता जाएगा. ग्राफ मतलब आपका वैल्यू में जितना पावर बढ़ाते जाऊंगा ना, आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा. तो ये ऐसे ऊपर ऊपर चला जाएगा. सर ठीक है. और इसका जो डाइवर्ट, ये केस में आप पावर नेगेटिव करते जाओ, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा. इसलिए नेगेटिव साइड में ये ऐसे है. इसका जो हाफ का पावर में -4 रखूंगा तो कितना आएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा वो उल्टा. हाँ, हाफ पावर -4, हाफ पावर -8, क्या होगा आपका x का मतलब पावर बढ़ रहा है बट वैल्यू पावर कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ता जाएगा. मतलब सर 1/2 टू द पावर -4 देखो कितना आ रहा है, 2/4 हो रहा है. 2/8 हो रहा है. तो जितना नेगेटिव पावर रखूंगा ना, वो वैल्यू बढ़ता जाएगा. सर वो लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होगा ना खाली. हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए. बट हम तो पावर को हम ये ले रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं ना, हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा. बट इसका ग्राफ नहीं होता है. सर वो एस इंफिनिटी वाला सर फॉर्मूला देखो ना सर ऊपर. तो r को जब मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन कराया, तो r रेज़ टू n क्या हो गया, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पार्ट आपका 0 की तरफ चला गया. तो आंसर क्या हो गया, a into 1 upon 1 by r, 1 minus r. तो इसलिए a upon 1 minus r is the answer. बट r जब मोर देन 1 हुआ तो ये क्या हो गया, टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ चला गया. तो टोटल वैल्यू अनडिफाइंड हो गया. तो टोटल बिकेम अनडिफाइंड. तो whenever mod r more than equal to 1, आपका s इंफिनिटी निकलता है नहीं, अनडिफाइंड हो जाता है. mod r greater than 1 तब s infinity undefined. हाँ s इंफिनिटी कब मिलता है जीपी में, जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है. प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा. हाँ सर. whether it is positive और नेगेटिव कोई फर्क नहीं. yes ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने दो पार्ट बनाया. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब -1 से लेके +1. नेगेटिव पार्ट को भी मैंने ये किया, कंसिडर किया.
एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शन 0 to 1 रखा जाए, नेगेटिव में नहीं रखा जाता है। फ्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है। बट यहाँ पे इसलिए मैंने मॉड और लेस देन 1 की, समझा? यस कोई फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है। तो एक्चुअल -0 to 1 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ, नॉट -1 to +1। बट मैंने दोनों साइड कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों पार्ट रखा। एक्चुअली दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो और एक नोट भी करो, जो कोई भी सीरीज के लिए, कोई भी सीक्वेंस के लिए, व्हाट इज योर Tn इन टर्म्स ऑफ Sn? Sn फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे? Sn क्या होता है? T1 plus T2 plus T3 up to plus Tn। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यस, Sn माइनस Sn माइनस 1। कोई भी सीक्वेंस के लिए आप, कोई भी सीरीज के लिए आप ये यूज कर सकते हो। सर अभी आप क्या बोले एसएन के बारे में, एक बार फिर से बोलना। आपको S100 दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? T1 से लेके T100 तक का सम, ठीक है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके सर। तो S99 क्या होगा? S100 T1 plus T2 up to plus सॉरी T99 99 माइनस ये दोनों 98। हाँ सर मिलेगा ना। ओके सर। तो Sn का मतलब होता है T1 plus T2 plus T3 up to plus Tn minus 1 Tn। Sn minus 1 का मतलब होता है T1 plus T2 up to plus Tn minus 1। ये दोनों का डिफरेंस रखोगे तो क्या होगा? Tn। तो Tn कोई भी सीक्वेंस के लिए Tn is equal to Sn minus Sn minus 1। ओके सर। सपोज आपको Sn दिया गया, हाउ टू फाइंड आउट लास्ट टर्म, तो आप इसको यूज कर सकते हो, बराबर? यस सर। यस सर। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। हम ये प्रॉपर्टीज भी वही एपी के प्रॉपर्टीज लाइन में भी किए। एपी का जो प्रॉपर्टीज हम किए, पहले R प्लस करना होगा, R हाँ। मल्टीप्लिकेशन रेस टू है। ये जितने सारे प्रॉपर्टीज किए थे उसी रेस्पेक्ट में करेंगे सब। हाँ सर। फर्स्ट लेट A1 A2 A3 and so on are in GP with common ratio R। तो फिक्स वैल्यू ऐड करूंगा तो A1 plus K, A2 plus K, A3 plus K and so on are in GP or not? Not in GP. It's not in GP। प्रूफ के लिए आपको थियोरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, ट्रू के लिए। फॉल्स के लिए आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग। फॉर एन एग्जांपल 2 6 18 आर इन जीपी, मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ। 3 7 19 आर दे इन जीपी? खत्म। No, sir. ठीक है। अच्छा, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर तो जीपी में होगा। सर तो Yes, sir. तो जीपी में रहेगा। दे आर इन जीपी। कॉमन रेशियो क्या होगा? R के नहीं सिर्फ R R. आर ही रहेगा सर R ही रहेगा आर ही sorry। रहेगा। के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कुछ पावर रखेंगे तो तो Fixed common power। ratio R सर R raised to K raised to हो K जाएगा। R R raised to K हो जाएगा common ratio। कॉमन रेशियो
r to the power k। ठीक है, और एपी केस में ये p हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। अब इसमें उल्टा है, फर्स्ट वन नहीं हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। if abc are in ap, GP ना। सॉरी जीपी, देन आपको मिलता है b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b, implies b square equal to sc, implies b is called root sc, and b is called geometric mean in between A and C. जी मतलब geometric mean in between A and C। ठीक है, let A B C D are in GP, और ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ all belongs to R plus है सर तो फिर सर तो बी क्या बोला इनटू सी आपने विल अभी? बी इक्वल्स हाँ? अभी आपने क्या बोला? सबको पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं कर रहा, यस सेफ के लिए। ABC। हाँ, अदरवाइज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो इधर आपका रूट ओवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। सपोज ए पॉजिटिव सी नेगेटिव तो फिर नहीं होगा ना। यस। ठीक है, तो मैं कंसीडर जो कर रहा हूँ अभी आर प्लस के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, नेगेटिव के लिए भी सेटिस्फाई करेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट हमेशा नहीं करता। ठीक है, लेट ए बी सी डी आर इन जीपी, देन बी एंड सी आर कॉल्ड geometric mean of Yeah. two geometric means in between A and D A and D and their product। उधर क्या था, सम था, इधर होगा प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब B इंटू सी इक्वल टू रूट ए डी का स्क्वायर। हाँ उधर क्या था, मल्टीप्लाई मीन का मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें मीन का स्क्वायर क्यूब Square. ऐसे होता जाएगा, पावर। पावर रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। ए बी सी डी आर इन जीपी, तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, लेट्स टेक कॉमन रेशियो आर, क्या लिखेंगे, AR square और AR क्यूब। व्हाट इज योर बी इनटू सी, A R A square ए स्क्वायर आर क्यूब। व्हाट इज ए इनटू डी, A square R ए स्क्वायर आर। ये भी एडी मिल रहा है ना, एडी रूट ओवर का स्क्वायर मतलब एडी मिल रहा है। सेटिस्फाइड? यस सर। सर वो स्क्वायर कब रहेगा? जितने मीन उतना पावर होगा। अच्छा यस। उसमें जितना मीन था एपी केस में जितना मीन था उतना मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें उतना पावर होगा। यस। सपोज ए बी सी डी ई आर इन जीपी, बट ये जीपी में होना जरूरी है। यस। देन बी सी डी आर कॉल्ड C geometric D geometric mean in and between their A and product A and B A and E D. Root of A रूट ए पावर क्यूब। cube. बराबर। Yes sir. ये दोनों का मीन, फर्स्ट एंड लास्ट का मीन होल टू द पावर जितने मीन्स रहेंगे। तो इन जनरल करेंगे तो लेट ए G1 G2 G3 up to Gn B are in GP, then these are called N geometric means means in between A and B. in between A and B, B yes and their product, and G1 into G2 into G3 and so on up to Gn क्या हो जाएगा, Root of AB raised to of N. AB power N रूट ऑफ ए बी होल टू दी पावर N बराबर। Yes sir. yes sir और इसमें एक नोट करो,
if A1, A2, A3 and so on up to An belongs to R plus, but not necessary they are in GP, then their geometric mean क्या होगा? A1 into A2 A1 into A2 Power 1 by n. yes It's a power 1 by up to An. raised Arithmetic to mean 1 में by they are n. sum to the power sum upon n. n. इसमें होगा their Power product to 1 the by n. power 1 by n. बराबर. Yes, sir. ये कोई भी रैंडमली आप कुछ भी एलिमेंट्स आप उठा सकते हो, बट मैंने R प्लस इसीलिए रखा थोड़ा सेफ, मतलब इसमें आपको कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा. जैसे मैं 2 and -3 का आप बोलोगे ज्योमेट्रिक मीन निकालो, मैं निकाल नहीं पाऊंगा ना. 2 and -3 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 2 into -3 to the power 1 by 2 यही होगा ना. Yes. तो -6 का रूट ओवर विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर. रियल नंबर में इसका रूट नहीं मिलता है. ठीक है, इसलिए मैंने R प्लस रखा. सपोज -2 and -3 हुआ तो फिर मैं निकाल पाऊंगा. Yes. Yes, Okay. sir. तो इसलिए मैंने R प्लस रखा ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हुआ. अदरवाइज नेगेटिव के लिए भी हम नहीं निकाल सकते. नॉट ऑल केसेस है. अच्छा, और एक कंबाइन करके बोलता हूँ. 3 टर्म्स ऑफ एन एपी. आप एपी का टर्म्स को क्या सिलेक्ट करोगे? A minus D, A and A plus G, A D. plus. A minus G, A plus G. ठीक है, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी दिया जाएगा. देन गो फॉर इंस्टेड ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस 2D. आप इसके साथ जाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा. ऐसा नहीं कि जो मैंने ए एंड ए प्लस डी, ए प्लस 2D रखोगे गलत मिस्टेक होगा, ऐसा कुछ नहीं. आप ले सकते हो. इफ यू go for a plus 2D and a plus 2D, this one also right, this one also right, better go for this thing. क्योंकि आपका जब सम ये तीनों का सम रखोगे ना, डी डी कैंसिल हो Yes, जाता है, sir. तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं. ठीक है, ये दिस इज एन ऑप्शनल केस. आप इसको ऐसे चूज करो. 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या A सिलेक्ट by करोगे? R, A and AR. ठीक है. 4 टर्म्स ऑफ एन एपी. A minus A minus D, D, A plus A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. इधर मैंने कॉमन डिफरेंस को 2D रखा. कॉमन डिफरेंस D नहीं रखा, कॉमन डिफरेंस 2D रखा, ताकि ये चारों को ऐड करोगे तो आपका D कैंसिल होगा. Yes. ठीक है. Yes, sir. ये जीपी के लिए A by R cube, A by R, AR and AR cube. यहाँ पे कॉमन रेशियो को R स्क्वायर रखा मैंने. वही लाइन में मैंने रखा. इसमें 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन रेशियो वही. ये माइनस मतलब डिवीजन हो रहा है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 टर्म्स रहेगा तो A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. a minus 2D, a minus D, A plus plus D. 2, A plus D, A plus 2D. तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस को D रखो. इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 2D. 2D रखो. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के A आपका मिडिल टर्म रख दो, फिर आगे पीछे कर दो. ठीक है. 5 टर्म्स ऑफ जीपी. A by R square, A by R, AR, then AR square. A by R square, A by R, AR square. ठीक है. सपोज आपका 100 टर्म्स गिवन है. आर इन एपी 100 टर्म्स आर इन एपी एंड सीक्वेंस में है.
ठीक है, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो फिर से बोलिए क्या बोला? Sum of 100 upon 100. 100. Sum of all terms upon 100. नहीं, आपका Summation A upon 100. क्या क्वेश्चन बोला आपने? ठीक है, सपोज 2 5 8 11 14 17, हाउ मेनी टर्म्स? 6 टर्म्स। इसका मीन पूछा गया है, तो मीन क्या होगा? 19/2. 19. यस, आप मीन एक तो निकाल सकते हो, आप कर सकते हो 2 + 5 हाँ। + 8 + 11 + 14 + 17/6, ये कर सकते हो। और इसका मिडल टर्म देखो, 6 टर्म के लिए देयर आर 2 मिडल टर्म्स, वो दोनों टर्म का मीन निकाल दो, वो भी हो जाएगा। सर अगर 5 टर्म रहते तो? सिर्फ एक ही मिडल टर्म होता है, दैट इज द मीन। ओके, मिडल टर्म एपी और जीपी, आपका मिडल टर्म इटसेल्फ मीन वैल्यू। इवन केस में देयर आर 2 मिडल टर्म्स, वो मिडल टर्म का फिर मीन निकालना पड़ेगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक ही मिडल टर्म होता है, दैट मिडल टर्म इटसेल्फ मीन। इधर चेक करो, वही 19/2 आपको देगा, देखो हाँ सर, ये 19, वो भी 19 ये है। भी 19, ये भी 19, 3 टाइम्स ऑफ 19/6 कितना मिला? 19/2. इधर भी 19/2। सपोज ये 5 टर्म होता, व्हाट इज द मीन? 16/2. 8. 8 आ जाएगा। बट नेसेसरी होता है कि वो सीक्वेंस में रहे। हाँ, आपका सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट? सीक्वेंस में होना Yes, sir. चाहिए। हाँ, सीक्वेंस में रैंडमली कुछ होगा तो आपको फॉर्मूले के साथ जाना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। बट आपका सीक्वेंस में है तो मिडल वन इज द मीन वैल्यू, ठीक है। और नंबर ऑफ केसेस में एक मिडल टर्म मिलता है, दैट इटसेल्फ मीन वैल्यू। इवन नंबर ऑफ केसेस में आपको 2 मिडल टर्म्स मिलता है, वो दोनों का मीन, राइट? यस सर। और एक होता है रिलेशन बिटवीन AM and GM. Okay, a relation between AM and GM. Let AB belongs to R plus, then AM क्या होता है? A plus B/2. GM क्या होता है? Root of AB. और आपका AM always greater than Greater than GM. ठीक है। आज AB belongs to R plus, you can find out root A and root B, ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। यस सर। इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? A plus B minus 2 root AB 2 under root AB. greater than equal to greater. implies A plus B A greater plus B greater than equal to 2 root AB. AB. तो A plus B/2 is तो A always plus B greater than by equal 2, to under root of AB. तो ये होता है AM Therefore, AM which is- greater than always greater than equal to GM. सर खाली वो माइनस के केस में अलग है ना सर, नेगेटिव के केस। AM इक्वल टू GM कब होगा? Terms When equal. A is equal to B. हाँ सर। ये इक्वल मतलब ये इक्वल मतलब ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, मतलब रूट A इक्वल टू रूट B हो जाएगा। AM इक्वल टू GM ओनली व्हेन A is equal to B. is equal to B. ठीक है। सिमिलरली लेट 3 टर्म्स A B C बिलोंग्स टू R प्लस, इसमें जरूर नहीं कि ये तीनों AP की GP ऐसा कुछ है, एनी 3 टर्म्स, सर तो इसका AM आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू
GM. That means a plus b plus c by 3 greater than equal to a b c to the power 1 by 3. Understood? So any in generalize, let a1, a2, a3 and so on up to an belongs to r plus. Then am क्या होता है? a1 plus a2 plus a3 and so on up to an upon n and gm होता है a1 into a2 into a3 and so on up Raised to to 1 by n. Raised to 1 by n. 1 by n. Here also am greater than equal to GM. and am equal to gm only when a1 is equal to a2 equal to a3. Each and every terms are equal. तब जाके m equal to gm होगा. तो if question given सर ये पॉसिबल नहीं है ना सर कोई भी सीक्वेंस. हाँ सर ये वाला am is equals to gm वाला. क्यों पॉसिबल नहीं? सर कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस तो नहीं रहता ना जिसमें सब टर्म इक्वल. तो 2 2 2 2 2 ये देखो ये एपी में रहता है जीपी में भी रहता है. तो इसका एम जितना होगा जीएम उतना होगा. हम लिखते हैं कि sin x and cos x let x belongs to first quadrant. What is m? Sin x plus cos x by 2. What is gm? Sin x into cos x to the power 2. If sin x equal to cos x then दोनों इक्वल हो जाएगा. That means tan x equal to 1. तो 45 डिग्री में चेक करो अब दोनों सेम आ जाएगा. सर it will be greater at 45 degree ना highest value सर sin x plus cos x. हाँ sin x plus cos x का highest value 45 डिग्री पर था ना. हाँ उधर ही आता है ना इसलिए. ओके इसीलिए तो उसका हाईएस्ट वैल्यू उधर ही आता है. अब देखो इसमें जो sin x plus cos x का हम वैल्यू क्या निकाले थे? मैक्सिमम मतलब मिनिमम क्या निकाले थे, मैक्सिमम क्या निकाले थे? सर क्या? sin x plus cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 1 by नहीं सर 1 sin x plus cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 2 Root 2. कर रहे हो आप लोग? हाँ सर. आपको मैं a sin x plus b cos x बता दूंगा, sorry, आप बता दोगे, बट ये लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देता है. अजीब है. ठीक है तो sin x plus cos x by 2 greater than equal to आप ये लिख सकते हो क्या? sin x इसको लिख सकते हो sin 2x by 2 का रूट ओवर. हाँ सर. यस सर. हाँ सर. यस. तो इसका sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 by root 2 to root 2. इसमें थोड़ा दिक्कत होगा जब तो स्क्वायर फॉर्मेट नहीं आएगा. ऐसा केस में नहीं होता है क्योंकि साइन कॉस थोड़ा tan कॉट में आएगा. tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x. ये क्या होगा? tan स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x. tan x cot x होगा. तो ये कैंसिल हो जाता है. ठीक है ना? हाँ सर. इसलिए tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू. बट आप बोलोगे sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर x करने के लिए
इसका मैं मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर। आप बोलोगे मैं बाय 2 करके इसको सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स करूंगा, इसमें नहीं होगा। इसमें मुझे कुछ कांस्टेंट चाहिए, मतलब ये कट हो जाएगा तो मैं बता सकता हूँ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये फिर वेरिएबल में रहेगा तो फिर डिफिकल्ट होता है। तो इसको क्या किया जाता है, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखा जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। अभी 1 प्लस 1 हो गया 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस यस tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसमें AMGM लगा जाता है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। इसलिए वो साइन कॉस में काम नहीं किया। उसमें भी सर ऐसे कोई ट्रिक लगाना, उसमें भी ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, 1/√2 आ गया। ये फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 से बड़ा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये नहीं होगा, क्या वो बॉर्डर वैल्यू दे दिया। फिर आपको कंडीशन में क्या होगा, √2 से वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए √2 उसका मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। हाँ, ये बता रहा था कि if question given distinct numbers, if A1, A2, A3 up to AN are distinct, positive real number, then AM क्या होगा? Sum of all terms IM. No. नहीं sorry. That case you have to use AM strictly more than GM. हाँ sorry. ठीक है, कोई भी एक, सपोज 2, 2, 2, 3, 2, इनका भी AM स्ट्रिक्टली मोर देन GM होगा। समझा? इक्वल टू और ग्रेटर देन कब रहेगा? इक्वल रहेगा जब ईच एंड एवरी टर्म्स आर इक्वल। ओह यस। इफ यू डोंट नो देन गो फॉर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। सपोज आपको नंबर्स पता नहीं, एलिमेंट्स पता नहीं, देन यूज AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इफ यू नो एलिमेंट्स, तो कोई एक भी डिस्टिंक्ट रहेगा, देन गो फॉर AM स्ट्रिक्टली मोर देन GM। क्योंकि मैंने क्या बताया, AM कब इक्वल GM हो सकता है? AM equal to GM only when each and every terms are equal. सर इक्वल, यस सर। तो कोई एक डिफरेंट रहा तो AM स्ट्रिक्टली मोर देन GM हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो हम उनके क्लास में यहाँ तक हम डिस्कस हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, बट थ्योरी पार्ट इतना ही हुआ था। सर वो अपने AM is less than equals to GM वाला भी एक से करवाया था। अच्छा, वो एक स्पेशल केस था। इफ AB बिलोंग्स टू R माइनस, इफ यहाँ पे मैंने जितना बताया सब R प्लस के लिए। इफ AB बिलोंग्स टू R माइनस, देन आपका AM लेस देन माइनस ऑफ GM होता है। if AB belongs to R minus, then arithmetic mean less than equal to minus of geometric mean। इसके लिए इसको भी हम प्रूव किए थे। let A equal to minus x, B is equal to minus y। तो x एंड y किस में रहेगा? पॉजिटिव रियल नंबर।
क्योंकि ए बी था नेगेटिव रियल नंबर में, ए को जब मैंने -x रख दिया तो x डेफिनेट पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा। हाँ सर। आज xy belongs to R plus, now you can use am greater than equal to gm। am क्या होगा, x plus y by 2 greater than equal to gm, मतलब रूट xy। अब x की जगह रिप्लेस कर दो -a प्लस -b by 2 greater than equal to -a into -b रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। हाँ सर, तो फिर वो माइनस am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, am लेस देन स्मॉल देन माइनस दिया, ये लिखो, नहीं तो ये लिखो। तो ये सेटिस्फाई कब होता है, जब ए बी बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर माइनस, वो केस में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, let a equal to -2 and b equal to -8, what is your am? माइनस ऑफ 10 by 2 -5। what is the gm? अंडर रूट 10। हाँ सर, अंडर 66 अंडर रूट 16 -2 into -8, तो ये 4 होगा। is am greater than equal to gm? नो सर, स्मॉलर है, नहीं होगा ना, तो क्योंकि am आपका नेगेटिव दे दिया, gm आपका पॉजिटिव दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में हम रिलेशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये तो पता है कि m लेस देन gm होगा ही होगा। तो इसलिए दोनों को पॉजिटिव बनाओ, नहीं तो दोनों को नेगेटिव बनाओ। एक केस में क्या क्या मैंने किया था, -am मतलब आपको मिलेगा 5 मोर देन 4, नहीं तो ज्योमेट्रिक मीन को नेगेटिव कर दो, तो -4 -5 एंड -4 के अंदर चेक करो व्हिच वन ग्रेटर व्हिच वन लेस। ठीक है, तो ये केस यूज होता है व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू नेगेटिव। तो इसलिए मैंने वही, इसलिए सेफ एंड के लिए रखा था कि ए बी जितने सारे नंबर्स रखा था ना, सब पॉजिटिव रियल नंबर रखा था, तो देयर ओनली ए बी मोर देन इक्वल टू gm होता है। Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज कुछ अलग करेंगे, न्यू। सर आप एचपी कब सिखा रहे हैं सर? एचपी अभी एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन? Reciprocal of AP. If a1 a2 a3 and so on up to an are in HP, then they are reciprocals. 1 by a1, 1 by 2 is a2 AP. 1 by a3 up to 1 by an are in, ठीक है, और वाइस वर्सा। मतलब एपी का रेसिप्रोकल रखोगे वो एचपी बन जाएगा, एचपी का रेसिप्रोकल रखोगे ओपी हो जाएगा। एपी एचपी दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द टीएन ऑफ एचपी क्या होगा? इट इज 1 upon टीएन ऑफ एपी। अच्छा, ओके। तो कोई भी एचपी सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, आपको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, एपी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एचपी में आप कुछ रिजल्ट निकाल नहीं पाओगे। कोई भी एचपी सीक्वेंस दिया जाएगा, आप उसका रेसिप्रोकल करके एपी सीक्वेंस निकालो। अब एपी का nth टर्म निकालो, दैट ऑलरेडी यू नो।
एपी का nth टर्म निकाल के फिर उसको रेसिप्रोकल ले लो, यू विल गेट nth टर्म ऑफ एचपी। इज दैट क्लियर? सर तो फिर ये एचपी क्रिएटिव क्या है अगर वो एपी पे ही डिपेंड करता है? हाँ, ये एचपी का ही, ये एचपी के ऊपर ही डिपेंड करता है। एचपी का कुछ अलग कुछ नहीं है, उसका एसएन आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि इट इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ एसएन। एपी का एसएन नहीं होता है। सपोज देखो, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4 आर इन एचपी। यस और नो? हाँ सर। क्योंकि 2, 3 आर इन 2, 3, 4 आर इन एपी। आज 2, 3, 4 आर इन एपी, देन 1/2, 1/3, 1/4 आर इन एचपी हो जाएगा। अच्छा, इसका आप नहीं तो और एक थोड़ा ये कर दो, लेट अस टेक 2, 5, 8 आर इन एपी, तो ये होगा 2, 1/2, 1/5, 1/8 आर इन एचपी। यस सर। What is the T15th term? T15th of AP क्या होगा? HP 1/44। आपका 15th टर्म निकालना पड़ेगा, AP का 15th टर्म निकालना पड़ेगा। जस्ट फाइंड आउट T15 of AP क्या होगा? T15 into 44. 14 into D is the 3. A plus n minus 1 into D ना, A की जगह 2, n minus 1 होगा 14, D होगा 3, कितना होगा? 44। तो T15th of HP क्या हो जाएगा? 1/44। तो आप AP के बिना इसमें निकाल नहीं पाओगे। इसमें क्या डालोगे? हाँ, इसमें क्या करोगे? कैसे आपको पता चल, मतलब ऐसा डायरेक्टली आप निकाल नहीं पाओगे। अच्छा, चेक करो, ये तीनों का सम कितना होता है? 18। 15। ये तीनों का सम इज इट 1/15? हाँ सर। नहीं। नो सर। नहीं। इज इट 1/2 plus 1/5 plus 1/8? नहीं सर, इज इट पॉसिबल 1/15? नहीं सर। नहीं होता है ना? हाँ सर। तो इसलिए नो एसएन फॉर्मूला। नो एसएन फॉर्मूला नहीं, आप 3-4 टर्म दिया जाएगा, आप उसका सम निकाल सकते हैं, इंडिविजुअली निकाल सकते हैं ऐसे करके, बट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ओनली nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है सर, न्यूमरेटर के लिए ऐसे तो बोल सकते हैं ना, SN of AP divided by A1 into A2 A2 ऐसे AN तक। क्या पॉसिबल नहीं सर, बोलने के लिए SN वैसे बोल सकता है ना सर। मतलब SN कि क्या लिखोगे? सर न्यूमरेटर AP का जो SN रहता है और डिनोमिनेटर में A1 A2 A3 up to AN। सर जो प्रैक्टिकल नहीं है बट स्टिल सर। तो वो तो आपको मतलब कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा ना। हाँ सर, वही प्रैक्टिकल नहीं है, वही का फॉर्मूला नहीं बनेगा। आप मतलब इंडिविजुअली मतलब ऐसे ऐड कर सकते हो। 10 टर्म आपका सपोज दिया गया, एपी का सीक्वेंस मतलब करके जो सॉरी आप 10 टर्म्स तक निकालो, फिर और 10 टर्म्स को आप ऐड करो, मतलब कोई सर्टेन फॉर्मूला नहीं होगा। Why HP has no SN formula? सर वो sum of AP by sum of P आपका क्या आएगा? सपोज आपका A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ठीक है ना? These are in AP. इसका सर्टन अब SN मिल जाता है। SN कैसे मिलता है? This is the S4. S4 क्या हुआ? A plus D, A plus 2D, A plus 3D। इसको क्या किया गया? वही S4 को पीछे से लिखा गया, रिवर्स में लिखा गया। फिर क्या लिखा होगा? A plus 3D, A plus 2D, A plus D, A। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा? y of SN equals to y of A plus 3D, ये दोनों का सम 3D
2a plus 3d 2a plus 3d होगा कितने टाइम्स? 4 4 times टाइम्स। तो आपका S4 क्या हो जाएगा? 4/2 4/2 2a plus 3d 4/2 होल इनटू 2a plus प्लस 3d a प्लस 3d ऐसे हुआ ना? हाँ सर a plus तो इसलिए n/2 मतलब जो फॉर्मूला एक्चुअली Sn फॉर्मूला मिलता था, Sn का फॉर्मूला कहाँ कैसे मिला था? ऐसे ही मिला था। yes Sn का मतलब होता है Sn होता है कि a, मैंने जैसे लिखा a plus d a plus 2d and so on up to a plus n minus 1 into d। सेम Sn को रिवर्स में लिख दो, a plus n minus 1 into d a plus n minus 2 into d फिर a plus n minus 3 into d and so on up to a। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ये दोनों का सम 2a plus n minus 1 into d, ये दोनों का सम वही मिलेगा 2a plus n minus 2 into d plus d, मतलब n minus 1 into d, ये दोनों का सम वही मिलेगा। ये ऐसे n टाइम्स हो गया। तो Sn का फॉर्मूला क्या बन गया? n/2 होल इनटू 2a plus n minus 1 into d। d ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन था। अब बताओ, मैं जैसे कि a plus d a plus 2d they are in AP, तो 1/a plus d 1 upon a plus 2d they are in HP। अब इन दोनों का सम को मैं कैसे निकालूंगा? calculate करना सर्टेन फॉर्मूला AP of numerator sorry no formula ऐसा कुछ, ये तो इसका एलसीएम कुछ अलग होगा, न्यूमरेटर कुछ अलग होगा, कोई किसी के साथ। आप बोलोगे मैं इसी रिवर्स में कर दूं, लेटेस्ट एक रिवर्स में करते हैं। तो ये होगा 1 upon a plus d 2d 1 upon a plus d, फिर ये दोनों का सम कितना होगा? ये दोनों का सम जितना, ये दोनों का सम उतना है क्या? हाँ हैं? नहीं सर नहीं उधर वो सेम था, इसलिए क्या हुआ था? n टाइम्स मिला था, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा इसमें। हाँ सर दैट्स ए नो Sn फॉर्मूला। आपको 3 4 10 टर्म दिया गया, 5 टर्म दिया गया, आप इंडिविजुअल निकालो उसको, फिर मतलब वो 5 टर्म का प्लस करो, वो मिलेगा, बट कोई सर्टेन फॉर्मूला नहीं। स्मिथ समझा? हाँ सर। इसका कोई Sn फॉर्मूला नहीं, ओनली Tn निकाल सकते हो। ओके ओके सर। तो Tn of HP is the 1 upon Tn of HP, right? इसका मीन देखते हैं, मीन मिलता है कि नहीं मिलता है। If ABC are in HP, then 1/8 B is called harmonic HM, हार्मोनिक में। तो फिर सर अगर समझो सर वो अगर ABC के फॉर्म में है HP, तो सर वो तो पॉसिबल रहेगा ना ऐसे निकालना? हाँ, आपको नोन है तो आप निकाल सकते हो, ये 3 टर्म में से निकाल सकते हो। 100 टर्म्स होता है, 100 टर्म्स का आपका नहीं दिया जाता है। देन हाउ टू फाइंड आउट? मैं एपी का ऐसे 3 टर्म देके मैं डॉट डॉट ये कर दूंगा, बोलूंगा कि इसका ऐसे निकाल दो, आप निकाल दोगे, बट इसके नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि आपको 4th टर्म के लिए आपको एपी यूज करना पड़ेगा। हाँ सर समझ। 5th टर्म के लिए भी एपी यूज करना पड़ेगा, हर टर्म के लिए आपको एपी यूज करना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है। देन बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है। तो जब एबीसी और इन एचपी हो गया,
मुझे बी निकालना है, अभी बी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एसी में क्या होगा, ठीक है, बताओ क्या होगा। 1 by a 1 by b 1 by c आर इन एपी। एपी हो जाएगा। हाँ सर। then 1 by b you can write 1 by a plus 1 by c by 2। हाँ सर। तो हो जाएगा c plus a by 2 ac equals to b, which is equal to what, that c implies plus a। b you can write 2 upon 1 by a plus 1 by c। हाँ सर। b हाँ चाहिए ना, b you can write 2 upon 1 by a plus 1 by c। actually this is the formula। इसको आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, you'll get v is equal to 2ac upon a plus c, हाँ right। तो तीन के लिए ए बी सी डी क्या और होगा? सर एक बार आप ये वाला वापस बोल सकते हो क्या, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या ये मेन सर वाला इसमें भी हम लोग सेम ही करेंगे ना सर। हाँ, तो सर आपको आप ये हमेशा एपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके। इफ एबीसी आर इन एचपी देन बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ओके सर। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे, मतलब बी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द बी, क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट बी इफ ए बी सी आर इन एपी। तो आपको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, उसको एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 by a 1 by b 1 by c आर इन एपी। तो एपी का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। यस सर। तो मिडल वैल्यू इज इक्वल टू ये दोनों का सम बाय 2। यस सर। 1 by b हो गया 1 by a प्लस 1 by c अपॉन 2। ओके b सर। क्या होगा, मुझे b चाहिए, b क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 1 by a प्लस 1 by c। ये आपका फॉर्मूला है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलता है v इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। सर इसमें b plus c का वैल्यू आ रहा है a b c d by a plus c। सर b plus c इधर का भी वैल्यू। b एंड c आर कॉल्ड टू हार्मोनिक में, बट अगेन आपको एपी में करके ही निकालना पड़ेगा। इधर आपको क्या मिल जाएगा, 1 by प्लस 1 by c इक्वल टू 1 by a प्लस 1 by d। फिर जो कुछ निकालना है निकालो। लेट a1 a2 a3 up to an belongs to r plus। ओके, r प्लस में सिर्फ मैंने सिर्फ एंड के लिए रखा, अदरवाइज कुछ ये नहीं है। तो am क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म। a1 plus a2 plus a3 up to plus an belongs to n। gm क्या होता है, प्रोडक्ट A1 A2 A3 a1 into a2 into रेज टू 1 a3 by n up to root n whole to the power 1 by n। n hm क्या होगा, n upon e1 plus e2 plus e3 n upon a1 plus a2 n 1 by a1 Plus plus a1. 1 by a2 plus 1 by a3 and so on up to 1 सर by ऐसे लिख देना 1 by am है? by am hm hm क्या होगा, 1 ना by am। ना 1 by m नहीं है, am नहीं है। 1 हाँ by m है क्या, रिवर्स हो रहा है। b क्या था, अच्छा a c a and c का am क्या था, 2 is एक सेकंड A a plus and c C का c am क्या upon था, a b plus c by 2 a plus c by 2। hm क्या मिला, 2 by a plus c। नहीं सर। 2 ac ना सर 2ac नहीं। upon a plus c। हाँ, तो 1 अपॉन अरिथमेटिक मीन नहीं है, ओके। इट इज नॉट 1 अपॉन अरिथमेटिक मीन। hm क्या मिला, अलग मिला 2ac अपॉन a plus c। हाँ सर। इसलिए मैंने इसको स्ट्रेस दिया कि दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो ये दो केसेस था, तो 2 अपॉन 1 by a plus 1 by c मिला। इसमें n है तो n अपॉन 1 by a1 plus 1 by a2 plus 1 by 3 up to 1 by n। मतलब इसका मीन निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल का मीन निकाल के फिर रेसिप्रोकल करेंगे।
am I right? 1 by a1 1 by a2 up to 1 by an का मीन निकालेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, then after you will get this thing. The second time ओके सर reciprocal पूरा क्यों? ऐसा करेक्ट। समझा क्या बोल रहे हो? Second time reciprocal क्यों? हाँ? Second time एक ये बार अभी एम है ना, वो am का हो जाएगा। पहले अच्छा टर्म्स को यस सर समझ गया। हाँ, बट इट इज नॉट सीधा सीधा मीन का रेसिप्रोकल नहीं है, यस सर ठीक है? हाँ सर। तो ये इसको प्रॉपरली ये करो। हाँ? सर ये कौन से पार्ट में यूज होता है सर एचएम? हाँ, सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहाँ पे यूज होता है एचपी? कहाँ पे यूज हो जाता है सर? हर जगह यूज होता है, इनइक्वालिटी के लिए यूज होता है। जो अभी वो इनइक्वालिटी आएगा ना। हाँ सर अब उसका इनइक्वालिटी आएगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस आपका ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जी एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है। देखो एम क्या मिला? ए प्लस बी बाई 2 जीएम क्या मिला? अंडर रूट ऑफ ए बी रूट ए बी रूट ए बी। एचएम क्या मिला? 2 बाई 1 ऑफ 1 ए प्लस 1 बी 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी। यस हाँ तो ये ठीक है, सर 2ab अपॉन a प्लस बी डायरेक्ट स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। अच्छा अब चेक करो सर तो वैसे ही हो जाएगा। एम इंटू एचएम क्या हो रहा है? ए बी GM square GM square क्या हो रहा है? ए प्लस बी कैंसिल हो जाता है, ए बी हो जाता है ना। हाँ हाँ सर हाँ सर। कोई चीज जीएम का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर जब ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जीएम का स्क्वायर, ये तीनों कौन सा सीक्वेंस में रहेंगे? GM geometric progression GP sorry A, geometric G, H. progression आर इन जीपी। yes sir इफ ए जी एच आर इन जीपी देन जी स्क्वायर होता है ए इंटू एच होता है ना। हाँ इफ ए सर बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। हाँ सर तो आज ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर मिला, देन ए जी एच आर इन जीपी। ठीक है, ओके सर। तो जीपी मैंने बताया था इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। कोई जीपी जिसका कॉमन रेशियो पॉजिटिव होता है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। आपका देखो कॉमन रेशियो हाँ सर मोर देन 1 होगा तो आपका बढ़ता जाएगा। यस सर। इफ कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तो 0 to 1 के अंदर रहेगा तो आपका जीपी कम होता जाएगा। हाँ सर वेव पैटर्न ठीक है, zigzag फॉर्म करेगा सर। हाँ जिगजैग होगा जब कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है। यस सर। बट मैंने तो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर रखा तो नेगेटिव का चांस नहीं, तो आपका जीपी इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। यस सर। ठीक है, एक बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा ऐसा तो नहीं होगा। हाँ और ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम पहले से प्रूव कर चुके हैं। हाँ सर कल में जीएम तो एम तो जीएम से बड़ा हो चुका है, तो जीएम क्या होना चाहिए? एचएम से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि हाँ, ये सर। इंक्रीजिंग में रहा नहीं डिक्रीजिंग में रहा। एम हाँ, बड़ा सर। होगा उसके बाद जीएम, तो डेफिनेट ये क्या होगा? एचएम से बड़ा होगा। क्यों सर? क्योंकि सर अगर एचएम का हम लोग फाइंड करते सर वो लेस देन 0 हो जाता है ना सर, जब तक नेगेटिव नहीं तो था। मैंने इफ एबीसी आर इन जीपी तो आपके पास क्या होता है? सर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी। आपका ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होगा और
ए लेस देन बी लेस देन सी हो। अच्छा हाँ ये और कुछ होगा क्या? नहीं। आपका ऐसा केस नहीं आता है ए ग्रेटर देन बी बी लेस देन सी, ऐसा नहीं होता है कोई जीपी में। यस सर। जब नेगेटिव रियल मतलब कॉमन रेशियो नेगेटिव होगा तब हो सकता है। इफ कॉमन रेशियो पॉजिटिव आपका जीपी बढ़ेगा, नहीं तो कम होगा। जीपी बढ़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग जीपी, दिस वन कॉल्ड डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग जीपी। Decreasing एक GP. केस में आर लेस देन 1 होता है, हाँ, एक सर। केस में आर मोर देन 1 होता है। बराबर। हाँ सर। तो मैंने तो बताया कि ए एम जी एम एच एम आर इन जीपी। जब मैंने जीपी बता दिया तो आपके पास दो ऑप्शन बचा भी, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होगा, नहीं तो एम लेस देन इक्वल टू जी एम लेस देन इक्वल टू एच एम होगा। यस सर, ये दो पॉसिबिलिटी हो बट ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं, हाँ सर ये मिस तो इसके साथ ही जाएगा, ये हो नहीं पाएगा। हाँ सर। तो सर ये Understood? मोस्टली जब डिक्रीजिंग जीपी होगा तभी फाइंड आउट करेगा। हाँ हाँ, जब डिक्रीजिंग जीपी होगा तब फाइंड आउट कर सकते हैं ना सर ये मिस। बट डिक्रीजिंग जीपी नहीं होगा ना एक केस में, क्योंकि ऑलरेडी एम ग्रेटर देन जीएम कर चुके हैं। तो Okay. एम जीएम एचएम में कभी डिक्रीजिंग जीपी नहीं होगा। ओके सर। हाँ नहीं समझा। ये तो नहीं ये तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग, ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग, आगे जा रहे वैल्यू कम हो रहा है। हाँ सर मैं वही बोल रहा था, ऑलरेडी डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग decreasing जीपी नहीं होगा। हाँ सर वही। एम जीएम एचएम वाला जो जीपी होता है वो कभी भी इंक्रीजिंग नहीं होता है। यस दूसरा होता है उसमें इंक्रीजिंग नहीं होता है, मतलब आपका कॉमन रेशियो आपका उधर जो बनेगा वो लेस देन 1 होता है। वैसे नहीं सर। अंडरस्टूड? यस ठीक है। सर। तो once again, if a is not equal to b, तो am equal to gm equal to hm कब होगा? When all the terms are same. If a equal to b, यस okay. Otherwise, am strictly more than gm, strictly more than hm if a is not equal to सर पर सर एचएम कैसे इक्वल होगा अगर ए इक्वल्स टू बी है तो सर? सर ए इक्वल्स टू बी है तो एचएम कैसे इक्वल होगा? hm कैसे इक्वल होगा सर जीएम पे? a equal to b जब होगा, हाँ सर सभी। हाँ रखो ना। If a equal to b, what is your am? सर वो 2a by a हो जाता है A plus b by 2. a plus b by 2 मतलब a आ जाएगा। हाँ सर। What is your gm? a रूट ए बी मतलब a स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज a आ जाएगा। What is your hm? एचएम इज सर 1 by a plus 1 2ab upon a plus b मतलब 2a स्क्वायर अपॉन 2a, ये भी है मिला। सर। ओके ओके यस यस सर। तो m gm hm तीनों इक्वल हो गया। हाँ सर। ठीक है। If a is not equal to m, sorry, a is not equal to b, then am strictly more than gm, strictly more than hm. अब देखो 2 and 4, what is m? 3. 3 yes sir। What is your gm? 3. 2 root 2 2 root 2. What is your hm? sir 2 by 1 2ab मतलब 16 1 by 3 into 8 sorry 16 by 6 मतलब 8 by 3 हाँ सर 8 by 3 है ना। 8 by 3 का वैल्यू कितना? 2.66। 2.2 का वैल्यू कितना? 2.8182. 2.828 हाँ तो मिला ना। 3 more than 2.28 more than 2.66 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? yes sir यस सर। एक केस में am strictly more than gm, strictly more than hm। yes sir ठीक है। यस अच्छा ये जो मैंने ये कंडीशन रखा
am more than equal to gm more than equal to hm, ये फॉर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। लेट a1 a2 a3 up to an belongs to r plus, here also am more than equal to gm more than equal to hm, बट ए केस में आपको जो जी एम आर इन एम जी एम एच एम आर इन जीपी वो कंडीशन नहीं रहेगा। तो कौन सा कंडीशन नहीं रहेगा? बट ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर, ये कंडीशन नहीं होगा। यस, ये तीन केसेस में भी नहीं होता है। सपोज आप ए बी सी रखोगे, व्हाट इज योर एम? सर m is equal to a plus b plus c by 3. जीएम क्या होगा? a b c whole raised to 1 by क्यूब। एचएम क्या होगा? sir hm will be equal to n by 1 of 3abc upon a plus a plus b plus c plus b plus c, yes sir. बट ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका कैंसिल नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हाँ सर, उसमें क्या था, 1/a प्लस 1/b था, इसलिए ये कैंसिल हो जाता था। अब am इंटू एच एम करोगे, क्या मिल रहा है आपको? abc 3 कैंसिल हो जाता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये मिल रहा है आपको, yes sir. विच इज नॉट इक्वल टू C. ठीक है। तो आपका ये जो आता है ना एम, ये सेटिस्फाई होता है बट ये नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जो लिखा ना एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम का स्क्वायर लिखा, और जो लिखा ए एम जी एम एच एम आर इन जीपी, दैट इज only for 2 elements, okay, satisfy only for 2 elements। ओके, मतलब खाली 2 एलिमेंट रह गए तो इसे ही सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो मतलब इवन नंबर के एलिमेंट्स रह गए तो भी नहीं करेगा? नहीं कुछ नहीं, वो भी नहीं होगा, ओके। बट फॉर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट am will be greater than आपका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ये सेटिस्फाई होगा, ये फिक्स, ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा कितने भी एलिमेंट्स रखो। बट ये जो ये केस पर्टिकुलर दिस केस ओनली सेटिस्फाई फॉर 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स के लिए उसको लगा नहीं पाओगे। ओनली यू कैन यूज am greater than equal to gm greater than equal to hm, and here also am equal to gm equal to hm only when terms are or elements are equal। Otherwise आपका am strictly more than gm strictly more than hm। समझाइए? यस सर। हाँ सर, हाँ एक सर, सेकंड समझ लिख लें तो ना सर वो सिर्फ am into hm equal to gm square वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए है ना? हाँ, सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए, बाकी के लिए नहीं। हाँ सर, क्योंकि इसीलिए मैंने 3 एलिमेंट्स जब चेक किया ना, नहीं हुआ ना। यहाँ पे मैंने जब 3 एलिमेंट्स चेक कर लिया था एबीसी, 3 एलिमेंट्स के लिए नहीं होता, नहीं हो रहा है, am into hm equal to gm square नहीं हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं। बट अब 3 एलिमेंट को लेके आप am gm hm चेक करो, आपको मिलेगा। मतलब ये सपोज 1 2 8, आपका am क्या होगा? 11/3। gm क्या होगा? रूट 4, 4, ठीक है ना।
HM क्या होगा 3/1 + 1/2 + 1/8 हाँ सर राइट। हाँ सर। ये कितना हो गया एलसीएम 8 हो गया तो ये हो जाएगा 8 + 4 12 13 13/8 मतलब 3 × 8/13 बराबर 24/13 हाँ 24/13। इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो ये कितना दे रहा है Ultimately equals to 3 point something। ये 3.67 तो कैसे ये सर 3 हाँ 4.3 कैसे आएगा नहीं सर? 3.67 सर सर कैसे उससे कम आएगा 2 से कम आना चाहिए ना सर सर GM 4 कैसे आया सर? सर सर GM तो 16 रूट 1/3 होगा ना सर? हाँ सर 3.3 आ रहा है वही सर सॉरी 16 to the power 1/3 वही मैं बोल रहा हूँ हाँ ये सर 3 कितना 3.67 हाँ 16 to the power 1/3 कितना होगा डेफिनेट 3 से कम होगा हाँ हाँ क्योंकि 3 का क्यूब 27 हाँ 3 से हाँ कम सर होगा 3 से कम तो 2 होगा √2 सर 2 क्यूब हाँ 2 √2 हाँ तो कितना मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो जो भी है सर ठीक है 2.5 समथिंग। हाँ ये 2 पॉइंट समथिंग होगा 2.51 ये हाँ, देखो हाँ, 1.9 और के ये आसपास 1.9 के आसपास हाँ 1.8 और 1.9 के आसपास हो रहा है तो हाँ, आ रहा है ना एम ग्रेटर देन इक्वल जीएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है हाँ सर सर हाँ सर हो रहा है बट इसमें एम इंटू जीएम एचएम जीएम स्क्वायर नहीं हो हाँ सर वो सिर्फ 2 इसके लिए होगा ना हाँ एलिमेंट्स के लिए आप इधर भी चेक करो ना इज 11/3 इंटू 24/3 13 इज इट 16 to the power 2/3 नहीं सर नो नहीं सर सर नहीं होगा नहीं होगा ये सर 1/3 16 to the power 1/3 समझाइए यस सर सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना हाँ यहाँ से आप नोट कर लो कहाँ पर है एचएम एचपी यहाँ से सर AM इक्वल टू और ग्रेटर देन कब होता है हाँ AM इक्वल टू और ग्रेटर देन GM इक्वल टू और ग्रेटर देन HM नहीं ऐसा नहीं रहेगा इधर तीनों में इक्वल रहेगा नहीं तो स्ट्रिक्टली रहेगा तो आपने नीचे लिखा था ना जब टर्म्स आर इक्वल रहेगा तो इक्वलिटी रहेगा मतलब इक्वल साइन आएगा अदरवाइज सर स्ट्रिक्टली होता है नीचे स्क्रॉल कर दो अभी इसका जरूरत नहीं सर इसका मॉडल है क्या हाँ है ना अच्छा आपके ग्रुप में नहीं दिया ना आज डालता हूँ तो कौन सा ग्रुप में डालूं ब्लू हाउस सर ब्लू हाउस में तो डाला गया था अच्छा और एक बार डालना पड़ेगा सर नॉन हम लोग ने कल परसों ही ज्वाइन किया हाँ इसलिए हम लोग के तो पास पहले जितने का नॉन इंटीग्रेट वाले सब आ गए ना मतलब ब्लू हाउस पर आ गए ना जितने हाँ जिसको सर हाँ ऑरेंज हाउस से हम लोग को शिफ्ट किया था सर
हाँ हाँ तो सर। एक बार मैं ऑरेंज में डाल देता हूँ और एक बार ब्लू में डालता हूँ, होगा? हाँ ओके सर। सर नॉन इंटीग्रेटेड वालों में भी डालना पड़ेगा, नॉन इंटीग्रेटेड वाले ब्लू हाउस के ग्रुप में नहीं है मतलब कुछ। अच्छा ऑरेंज, ओके ऑरेंज वाले आगे ब्लू में, ठीक है। सर ऑरेंज वाले जेई वाले ब्लू में है अभी। हाँ सर, हाँ, तो फिर ऑरेंज यही में वाले डालना जो नहीं है पड़ेगा ना। इंजीनियरिंग ऑरेंज के। में सिर्फ बायो वाले हैं, जरूरी नहीं है वो। हाँ, हाँ इंजीनियरिंग तो वालों को नहीं रखा उसमें। मैंने आज जो 2 ग्रुप में डाला था ये क्लास के लिए, वही 2 ग्रुप काफी है ना, डालेंगे तो? हाँ हाँ मतलब हाँ चलेगा सर। यस सर, वो दो का ही है। यस। सर आज के क्लास के व्हाइट बोर्ड नोट्स भी आप भेजने वाले हो ना? हाँ भेज दूंगा। हाँ सर प्लीज। सर आप इसका रिकॉर्डिंग कब तक डाल दोगे सर? रिकॉर्डिंग? सर आप इसका रिकॉर्डिंग कब तक डाल दोगे वेबसाइट पे? रिकॉर्डिंग तो मैंने मतलब आप लोग के हाउस में डालता हूँ ना। हाँ सर, कभी डालोगे सर आप? हाँ वो क्या जब सर? क्लास खत्म होगा 10-15-20 मिनट में आ जाता है रिकॉर्डिंग। हाँ सर, थैंक यू। आप बोल सकते हैं कौन से डेट पे फर्स्ट लेक्चर हुआ था ब्लू हाउस का सीक्वेंस एंड सीरीज का? क्या? माने फर्स्ट लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का जहाँ पे से हमको देखना है ऑरेंज हाउस, डेट क्या था फर्स्ट? फ्राइडे, फ्राइडे 12:30 मिनट रहेगा। 7th अगस्त। लास्ट 3 फ्राइडे बस। 7th फ्राइडे कब था इस बार? 21st को था ना, तो 7th 14th एंड 21st ये तीनों देखना पड़ेगा। यस सर। हाँ सर, बट वो आज रिवीजन करवाया था ना लास्ट क्लास का, तो क्या हुआ? रिवीजन करवाया था तो लास्ट क्लास का देखना है क्या, क्योंकि लास्ट क्लास बहुत सारे सम्स किए थे ना, हाँ तो बट सम्स भी आपको जितना देखना है ना। सिखाया वो आज कंप्लीट कर दिया। सम्स देखना है आपको हाँ कि? सर, नहीं मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ, मैंने तो अटेंड किया। हाँ जिसने अटेंड किया जरूर नहीं। हाँ देखिए सर, मैं ये बोल रहा था AM इक्वल टू और ग्रेटर देन GM, ये बात। तीनों में ना, दोनों में इक्वल, एक में इक्वल मतलब इक्वलिटी और एक में इनइक्वलिटी नहीं होता है ना। यस सर। तो मैंने तो वो लिखा है इफ टर्म्स आर इक्वल, इधर लिखा है कहीं पे, कहाँ पे लिखा है? सर नीचे लिखा था। सर रेड में ही लिखा है। नीचे है सर, हाँ बॉक्स सर। AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM कहाँ पे लिखा है? और नीचे रेड में ही लिखा है बॉक्स में। बॉक्स के नीचे। हाँ हाँ हियर AM इक्वल टू GM इक्वल टू सर HM नीचे। एलिमेंट्स आर इक्वल हाँ हाँ लिखा है। हाँ हो गया ये?
If ABCD are in HP, then find the value of AB plus BC plus CD plus AD. सर पुराने स्टूडेंट्स के लिए क्या होमवर्क है? सर अच्छा असाइनमेंट ठीक है उनके लिए ठीक है। यस सर। तो वो लास्ट लेक्चर और रिकॉर्डिंग कब मिलेगा वो डाउट सेशन दोनों का, मतलब यूट्यूब पे? डाउट सेशन का ठीक है। सर असाइनमेंट पे फिर से भेजना पड़ेगा। हाँ असाइनमेंट भेजना। असाइनमेंट ठीक है। असाइनमेंट तो आपको मिल जाता है इसमें। ये तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1-2 आपको तो बुकलेट से मिलेगा। असाइनमेंट ऑलरेडी डाला हुआ है, 1 डाला हुआ है, 2 आज डालूंगा। सर बुकलेट भी हमारे पास नहीं है। बुकलेट डाल दूंगा ना अभी। अच्छा यस। हम लोग लीव कर सकते हैं? लीव कर सकते हैं? क्वेश्चन दिया ना, अच्छा ये कौन करेगा? फिर 1 है का आंसर? ना। सर आपने अभी मॉड्यूल भेजा ना? हाँ अभी मैडम। ओके थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और क्या भेजना है? असाइनमेंट सर आप भेज रहे हैं या हम लोग हाँ ग्रुप से ले लें? वो ऑनलाइन कर लेंगे ना, ऑनलाइन मिल जाएगा ना वेबसाइट सर? से ले हाँ हाँ वेबसाइट से वेबसाइट आपको ये मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, लास्ट का रिकॉर्डिंग रहेगा मेरे पास। हाँ और सर व्हाइट बोर्ड नोट्स। हाँ व्हाइट बोर्ड नोट्स। व्हाइट बोर्ड आज का और कल का डाउट, ये ना। सर हाँ आपने सर। मॉड्यूल अभी भेजा? हाँ सर डाउट का रिकॉर्डिंग। हाँ मॉड्यूल अभी भेजा मैंने। हाँ सर मिला सर। हाँ सर आंसर 3 है। या सर हाफ है क्या आंसर? नहीं।
मिला? और बाकी 3 द राइट आंसर। आपको ABCD R in HP दिया गया तो आप ऑलवेज AP में कन्वर्ट कर दोगे। 1/A, 1/B, 1/C, 1/D R in what? AP. Let common difference with the X ले लो, ठीक है। और मुझे AB चाहिए, तो 1/B minus 1/A equal to X. That also 1/C minus 1/B. That also 1/D minus 1/C. Right? Yes, sir. Yes, sir. And तो इसमें आपको मिल जाएगा A minus B by X equal to AB. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, B minus C upon X equal to BC. BC. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So C minus C D minus D Upon upon X. X CD. तो मुझे AB मिल गया, BC मिल गया, CD मिल गया है। अभी AD We'll चाहिए। add all of them. What is 1/D minus 1/A? क्योंकि AD मुझे चाहिए। X. A minus D by X. 3X. 3X होगा, ये फोर्थ टर्म ना, Yes, sir. is 1/A plus 3X, ये 3X होगा। That implies D minus A upon no A minus D upon 3X equal to AD। Yes, sir. और मुझे चाहिए AB plus BC plus AD plus AD upon. AD डाल दो। AB के जगह डालेंगे A minus B by X plus B minus C by X plus C minus D upon X all divided by A minus D upon 3X. No, AD upon 3X. No. तो क्या मिला? A minus D और बचेगा और हो जाएगा। A minus D by X upon A minus D by upon X. A minus D upon On 3. X. X तो कैंसिल हो हाँ गया। सर। Yes, sir. हाँ Yes, 3. 3. 3. आ गया Yes, sir. करेक्ट सर हाँ सर। हाँ सर ऐसे। समझा? Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर समझा Yes, sir. Yes, हाँ सर sir. समझा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट टाइम फिर मतलब एचपी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एजीपी करेंगे। चलो स्टॉप करते बाय हैं। सर Okay, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you. सर थैंक यू Thank सर you, sir. बाय यार। Sir. थैंक यू सर बाय। Bye.